और रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है ज़रा देखें, आइए वो भी देख लेते हैं। भैया रे भैया, ये तो पूरा उड़ ही गया। इसके बावजूद ये बच गया भाई, इसमें निकल आया है। ये देखिए, ये पहली फटी, 2 माइंस थी, धमाक ये गया। और एक और 2 माइन बैक टू बैक। इसके बावजूद इसमें अंदर बैठा हुआ बंदा बच गया। रशिया का टैंक था ये, इसके बावजूद बच गया और बाहर निकलने लगे भाई इनके सैनिक। और तब आर्टिलरी ने आके हिट कर दिया। आर्टिलरी फायर से हिट हो गया। तो अब रशिया का नुकसान होगा तो रशिया छोड़ेगा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि रशिया छोड़ देगा। तो रशिया क्या करेगा? रशिया ने भी पलटवार किया यूक्रेन पे, बड़ा ज़बरदस्त किया, रॉकेट से हमला कर दिया दबाकर। तो ज़बरदस्त गोलाबारी दोनों तरफ से जारी, और यूक्रेन को जो है हथियारों से मदद कर रहा है अमेरिका। और इस चीज़ को लेकर आमने सामने आ गए पुतिन और बाइडेन। यूक्रेन को नए हथियार देने के अमेरिकी फैसले पर भड़का रूस, दी ये चेतावनी। नया सिस्टम दे रहे हैं, कौन सा? आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई मार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये बहुत ही प्रिसाइस है और बहुत इस सिस्टम को। ये सिस्टम जो है रशिया यूक्रेन अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। इस पर जो है रशिया भड़क गया। तो भड़का तो क्या बोला, देखें जरा। अमेरिका और रूस में सीधे टकराव की आशंका, यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने पर भड़का मॉस्को। सीधे सीधे युद्ध होने की संभावना है। रूस के खिलाफ युद्ध से कतरा रहा अमेरिका। जो बाइडेन बोले हम नाटो और रूस में युद्ध नहीं चाहते। तो एक तरफ हथियार भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते। अमेरिका ने रशिया ने एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया, बोले अब जो यदि ये इस तरह से करते हैं तो फिर ये सीधे सीधे युद्ध हो जाएगा अमेरिका और रशिया के खिलाफ, ये सीधा टकराव हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, वक्त बताएगा। युद्ध थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन खैर रशिया अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करता जा रहा है धीरे धीरे। रशिया हैज टेकन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ यूक्रेन्स साइवरोडोनेस्क। तो ज़्यादातर जो है इलाकों पर धीरे 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 करके कब्जा अपना जमाता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो रशिया जीतता जा रहा है, यूक्रेन हारता जा रहा है, और हम नहीं कह रहे। अमेरिकन से ही सुनवा दें क्या कह रहे हो। End this crisis and prevent a war with Russia by doing something very simple, guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put US and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. The reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and NATO leaders actually just say that and guarantee it? Which begs the question of why are we in this position then? If the answer to this and preventing this war from happening is very clear as day, and really it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia to invade Ukraine. Why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this Cold War in place.
The military-industrial complex is the one that benefits from this. They clearly control the Biden administration. Warmongers on both sides in Washington who've been drumming up these tensions. If they get Russia to invade Ukraine, then again, it locks in this new Cold War. The military-industrial complex starts to make a ton of more money than they have been in fighting Al-Qaeda or making weapons for Al-Qaeda. And who pays the price? The American people pay the price. The Ukrainian people pay the price. The Russian people pay the price. It undermines our own national security, but the military-industrial complex that controls so many of our politicians wins, and they run to the bank. You've seen this from both sides as a lawmaker and a member of our armed forces, so I think you've got a credible view on this. I've looked at this carefully, Tucker, and I have yet to find any benefit that a political leader has used or could use to justify this to the American people. All you hear is like, well, we have to defend democracy. We have to defend this democratic country of Ukraine. But as you know very well, this current president, shuts down arrests political opposition. बहुत बुरी तरह से अमेरिका की पोल खोल दी और कहा कि बहुत सिंपल सी बात है, युद्ध खत्म करना 2 मिनट का काम है। अमेरिका सिर्फ ये गारंटी कर दे कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, ये जो यूक्रेन है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा अमेरिका जानबूझकर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुद चाहता है। और अमेरिका खुद भी इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि बाइडेन और तमाम सारे उनके जो लोग हैं, वो उनको जो चलाने वाले लोग हैं, वो कौन है? उनको चलाने वाले आर्म्स लॉबी वाले लोग हैं। खैर, तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।